السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کے بیچ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر کے آیا ہوں۔ پنجاب کے شاہی امام نے بہت ہی خاص مسلمانوں کے لیے پیغام دیا ہے، خاص کر کے رمضان مبارک کے مہینے میں یہ خاص پیغام ہے۔ آپ ضرور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ چینل نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے پر اس پوری ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیں۔ رمضان میں جب ہمارا دل کرے گا ہم ویسے تراویح کرا لیں گے۔ ان دن میں قرآن سننا ہے، وہ اپنے گھر کی چھت پہ تراویحاں کرانے والا ہو، ایسے جتنے غنڈے ہیں۔ اور رمضان المبارک سے پہلے ہی 3 دن کی تراویحاں، 1 دن کی تراویح، 2 دن کی تراویح، حافظ ریل کی تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک روشنی کا مینار نظر آ رہا ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ٹھیکیداروں کو دوبارہ یاد کرواتا چلوں جو دنیا میں اب نام نہاد ٹھیکیدار بن گئے اسلام کے، جو اگر قرآن پاک کو اگر کوئی غیر مسلم کچھ کہہ دے یا کر دے تو پھر شور مچاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک سے پہلے ہی 3 دن کی تراویحاں، 1 دن کی تراویح، 2 دن کی تراویح، حافظ ریل کی تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو اسلام کی روایتوں کو اپنی دولت کے بل پر کہ ہم تو مسجد تک چل کے جا نہیں سکتے، ہم تو اپنے گھر میں امام بلا کے یہیں پر تراویحاں کرواتے رہیں گے، کرواؤ پھر اپنے گھر کے اندر تراویحاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں جو جان بوجھ کے اسلام کی جمعیت کو، اسلام کے اتفاق کو، مساجد کی رونقوں کو کم کرنا چاہتے ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں حاصل کر رہے، یہ قرآن پاک کی بیعت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 دن میں قرآن سننا ہے۔ اچھا جی، باقی کے 26 دن کہاں جانا ہے آپ نے؟ نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ سارے رمضان میں تراویح کے اندر اللہ کا قرآن پڑھو۔ پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، نمازوں میں قرآن ہونا چاہیے، وطروں میں قرآن ہونا چاہیے، چلتے پھرتے تلاوت ہونی چاہیے، مسجدیں قرآن کے ساتھ سجا دی جائیں، 24 گھنٹے قرآن پڑھنے والوں کی آوازیں آئیں۔ تم اپنی دولت کے بل پر اسلام کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتے ہو؟ تم رئیس بن گئے ہو، اس لیے تم چاہتے ہو کہ ہماری کوٹھی پر تراویحاں ہو جائیں؟ زیادہ دولت کا غرور آ گیا ہے کہ شاید پیسے کے بل پر ہم جو کریں گے اپنے گھر میں ہی جمعہ کروا لیں۔ جن جگہ مساجد کی کمی ہے وہاں کئی جمعے اب بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں، کچھ نئے شہروں میں جہاں انڈسٹری آئی تو کئی ترم خاؤں نے کہا جی ہم تو اپنے گھر میں ہی جمعہ کروا لیں گے، تو بس پھر وہ تمہارا ہی ہوا، جو پڑھنے والے ہیں ان کا نہیں ہوا ہے۔ مفتی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اپنی طرح کا مسئلہ لکھ کے، اپنی طرح کے سوال لکھ کے، اپنی مرضی کے سوال جوڑ توڑ کے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کسی دارالافتاء والوں کو تو نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں کمی بیشی کر کے گمراہ کر سکتے ہو، لیکن وہ رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، جس رب کے کریم رسول نے کہا اور جس حدیث کو پہلی حدیث کا درجہ دیا، جس حدیث کو امام بخاری نے سب سے پہلے لکھا، جس میں رسول اللہ نے کہا او کما قال النبی علیہ السلام انما الاعمال بالنیات، فرمایا تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صرف اپنی شہرت ہے، اگر نیت صرف اپنی انا ہے، اگر نیت صرف دوسروں کی بے عزتی ہے، اگر نیت صرف اجتماعیت کو توڑنا ہے، اگر نیت صرف اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا ہے، تو تمہاری قسمت میں صرف وہی لکھا ہے، اللہ کی رضامندی تمہارے ساتھ نہیں آنے والی ہے۔ اسی پہ ٹکے رہو۔ پھر جھوٹا قرآن کا نام لینے سے قرآن کا داعی نہیں کوئی بن سکتا۔ اپنی مرضی سے اسلام کو چلانا چاہتے ہیں کہ رمضان میں جب ہمارا دل کرے گا ہم ویسے تراویح کرا لیں گے۔ اپنا لب و لہجہ دستور محمد الرسول اللہ کا ہے، دین محمد الرسول اللہ کا ہے، قاعدہ محمد الرسول اللہ کا ہے، عمل محمد الرسول اللہ کا ہے، اور یہ قرآن محمد الرسول اللہ کا ہے۔ کوئی کتنے سے کتنا بڑا مائی کا لال کیوں نہ آ جائے، رسول اللہ کے طریقے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو جن کو اور بھی شوق ہے لدھیانہ جیسے شہر میں یا کئی انڈسٹریل شہر ہیں کہ نہیں جی ہم تو قریب میں ہی سن لیں گے، حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے
नाबीना सहाबी, आंखों से नजर नहीं आता, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आते हैं, ठोकर लगती है, गिर जाते हैं। एक दिन कहा, या रसूलल्लाह अगर आप कहें मैं घर पे नमाज पढ़ लिया करूं, मजबूरी है, परेशानी है, और मजबूर के लिए तो हुक्म भी है। तो अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मजबूरी है बड़ी, अभी बाहर भी नहीं निकले, जिब्रील आ गए, फरमाया या रसूलल्लाह अल्लाह कहते हैं आपने इनको क्यों घर पे कह दिया नमाज पढ़ने के लिए, ऐसे ही लोगों की वजह से तो दूसरों की भी नमाज कबूल होती है। ये नज़ूल कुरान का महीना इसलिए है कि इस महीने में कुरान को पढ़ा जाए, इस महीने में कुरान को समझा जाए, इस महीने में कुरान पे अमल किया जाए, इस महीने में कुरान की रूह को समझा जाए, इस महीने में कुरान के कहने पर चला जाए। और अगर सिर्फ पढ़ के सिर्फ 10 दिन में 5 दिन में फारिग होके भागना ही है तो ये कोई बंदा इसको कुरान का दाई नहीं बन सकता है। क्या कहा कुरान ने? हक है। कुरान ने क्या कहा? अगर ये रमजान आ गया तो फिर ले आइए कुछ ऐसे लोगों को जो मस्जिद में कम से कम एक रुकू का रोजाना तर्जुमा करके आपको तफसीर बता सके तरावियों के बाद कि अल्लाह का कुरान कहता क्या है। अल्लाह का कुरान बार बार कहता है कि जिस औलाद पर, माल पर, उस माल पर जिसके खत्म हो जाने का तुम्हें खतरा है, तुम इसको लेकर रब को छोड़ते हो। अल्लाह के कुरान ने कहा औरतों को कि अपना चेहरा ढांप लो, लेकिन उससे पहले मर्दों को कहा कि अपनी निगाहों को नीचे कर लो। अल्लाह ने कुरान में कहा नमाजियों को कि यतीम की इज्जत नहीं करते, तो खराब है ऐसी नमाजें जो यतीम का एहतराम नहीं करता। अल्लाह कुरान में बार बार फरमाते हैं कि चुगली मत करना, किसी के ऐब मत तलाश करो। कुरान में बार बार अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जाओ गरीबों की मदद करो, मिस्कीनों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो। कुरान में बार बार कहा गया कि झूठ के करीब मत जाओ, जिना के करीब मत जाओ। अब अगर कुरान पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ तभी पता होगा कि कुरान कहता क्या है। मियाँ साहब 500 रुपए किसी को दे के अब्बा के लिए दुआ करा के मसला होने वाला है नहीं। दिल को समझाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि हमने 10 बच्चे घर बुला के कुरान पढ़वा लिया है, ये ख्याल अच्छा है आपके नज़दीक कि हाँ हम मस्जिद में गए थे, मौलाना साहब को रसीद कटवा के आ गए और शायद अब हमारी मगफिरत होने वाली है। वो अलग बात है जो आपने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर दिया, वो एक अलग मामला है अजर और सवाब का। लेकिन जो अपना किरदार खराब है उसको कौन ठीक करेगा भाई? रमजान किस तैयारी की बात करता है, हम कौन सी रिवायतों की बात करते हैं? रिवायतें ये हैं कि रोजेदार रोजों से पहले इस बात की तैयारी कर ले कि इस बार एक भी रोजा कज़ा नहीं होगा। रोजेदार इस बात की तैयारी कर ले कि अपने रब के अलावा किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाया जाएगा। रोजेदार इस बात की तैयारी कर ले कि आंखें किसी की तरफ गंदी निगाह से अब नहीं उठेंगी। रोजेदार अब इस बात की तैयारी कर ले कि जिनका मैंने हक मारा है उनका पहले हक अदा कर दूंगा, उसके बाद रमजानुल मुबारक के रोजे रखूंगा। तैयारी इसको बोलते हैं, रिवायतें ये हैं। सुभान अल्लाह। और रमजानुल मुबारक की रिवायतें तो इतनी रईस हैं, इतनी जामे हैं कि जब आप रमजानुल मुबारक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात पढ़ेंगे, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा भी कितनी कीमती शय और कितनी मुक़द्दस चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए आपको अता फरमा दी है। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी, कोई गुनहगार बंदा कोई अच्छा काम करता है ना तो लोग कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। सुनी है कहावत कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। तो जिसने भी ये कहावत बनाई उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बात भी मान ली कि 900 गुनाह हुए हैं। इन 900 गुनाहों के बाद बाप ने छोड़ दिया, इन 900 गुनाहों के बाद माँ ने छोड़ दिया, इन 900 गुनाहों के बाद भाइयों ने छोड़ दिया, इन 900 गुनाहों की वजह से दोस्तों ने छोड़ दिया, इन 900 गुनाहों की वजह से रिश्तेदारों ने कता ताल्लुक कर लिया। और इन 900 गुनाहों के बाद अगर वो अल्लाह की तरफ ना जाए तो फिर जाए किस तरफ? 900 गुनाह करने के बाद भी मेरा रब कहता है मा गर्रका बिरब्बिकल करीम कि आजा मेरे बंदे तू मेरी तरफ पलट आ, मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत।
तो ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को जिंदाबाद। कि हमने रस्म नहीं निभानी इस मर्तबा, हम अपने किरदार से रिवायतें निभाएंगे। हम रमज़ान में मज़लूमों की मदद करेंगे, हम अपने मुंह में लुक़मा डालने से पहले गरीब का ख्याल रखेंगे, हम वक्त पर पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, और जो तिजारत करते हैं कुरान की रमज़ान के अंदर और जो मजाक उड़ाना चाहते हैं, चाहे वो कोई मुतवल्ली हो, चाहे वो किसी मस्जिद का प्रधान हो, चाहे किसी बड़ी सोसाइटी का जिम्मेदार हो, चाहे वो अपने घर की छत पे तरावियाँ कराने वाला हो, ऐसे जितने गुंडे हैं उनके पीछे नमाज पढ़ना और वहाँ जाके अपने रमजान की तरावियों को खराब करना, इस बात को तय कर लीजिए कि जो भी करीब की मस्जिद होगी वक्त निकाल के उस मस्जिद की जीनत बनेंगे, ताकि मस्जिद भी कल को कह सके क़यामत वाले दिन की अब्दुल रहमान रमजान की तरावियां मेरी जमीन पर पढ़ता था। इंशाअल्लाह। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी इस बात पे एतराज हो कि जी हाफिज बहुत ज्यादा हैं, इतने हाफिज कहाँ जाएंगे, मस्जिदें भी कम नहीं हैं, मस्जिदें भी कम नहीं हैं। और हिम्मत कीजिए, एक में 2 बार सुन लीजिए, मस्जिदों की भी तादाद कम नहीं है, और अगर कम पड़ रही हैं तो और बनाओ, अल्लाह के घर और बनाओ, ताकि यहाँ लोग इल्म हासिल करें, इबादत करें, बच्चे तालीम हासिल करें, लोगों की तरफ पैगामे मोहब्बत बढ़ता हुआ जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम दस्तूर को बदलने की कोशिश करें, दस्तूर को तब्दील नहीं किया जा सकता है। ये इस्लाम की यही तो बात है। पूरी दुनिया में अब तक जितने दस्तूर बने, बड़ी बड़ी हुकूमतें बनी, जो नई हुकूमत आई उसने पिछले वाले का दस्तूर बदल दिया, जो नया बंदा तख्त पर बैठा उसने पहले वालों का दस्तूर बदल दिया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है और इस पर रसूलुल्लाह ने मोहर लगा दी। सही। सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दी, कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल। अब किसी की तावीलें इसको तब्दील नहीं कर सकती। और बुलंदी, सरबुलंदी है ही उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। इज्जतें उन्हीं के लिए हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानते हैं। तो तैयार हो जाएं, इस रमजान में करेंगे इंशाअल्लाह, रिवायतों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। रस्में नहीं निभानी हमने, इंशाअल्लाह हम रिवायतें निभाएंगे, और वो रिवायतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में निभाई। तो नाज़रीन इकराम, आपने पूरी वीडियो देख लिए और पंजाब शाही इमाम ने किस तरीके से मुसलमानों को पैगाम दिया, आपने सारी बातें आपको सुन ली होंगी, तो आपको सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो नाज़रीन, ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा, अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।